is correlated price, and this along with this page base package, always this extra linear packages associated with this base packages will also get removed here. So the calculation we just need to uh, purchase with this $9, and the subscription will upgrade it with a combo package now. So here in the edit subscription flow, we can like change this billing address or shipping address from this page here. These all the fields will be disabled. Credit card details already we have. That's why it's showing as credit on file. And just we need to click on the submit subscription button over here. Hello everyone. So basically, Yeah, good evening. Good evening, everyone. We will wait for 1 more minute and then we will start. So yeah, today I got messages if there are a few learners who are not able to join today's session, but it's okay. They will be looking to the recordings and yeah, they will continue with the next session. So we can start and let others join as per their availability. Before that, I just want to confirm that my voice is audible and the screen is visible, right? Shown clearly Yeah. 29.76 And from my side, let me this one. check if the recording is also enabled. Actually, what happened in the morning's batch na, today I forgot to record the meeting. The second thing is, guys, the reason why we are conducting the Zoom meeting today. So there were 2-3 things. One was there are some issues with the graphy, and as we discussed, with the screen sharing, there are some options which are not enable in the sense like when sharing the full screen, still there was a pop-up. So I mentioned that thing to them. And also I just want to confirm that in the background there is no noise na, from my side, because I know that Zoom is very good to reduce the noise, the background noise. And today, as here is some program going on the occasion of Guru Purnima. So yeah, and that's why I wanted to confirm if I am clearly audible. So you can just confirm by writing a message. Yeah, the voice is clear and I am audible clearly. Then we will move to our regular session. So yes, guys, am I audible clearly? There is no background noise. Please confirm. yes. All No right. background, audible. Hi, Moin. Okay, so Yeah. everything is clear. All Yes. right. Okay, so let's move to the next thing, next step of our very first module of Python. Python for machine learning. Now we are looking into, and we will be practicing the more real things which we'll be needing when we will be moving ahead with let's say data analysis, then machine learning, and then implementation of neural networks around. But yeah, before that, as I said, this is the very first module which is the base of machine learning, and which we are exploring. Which we are looking into, and we are practicing it. So that is one thing. The second thing is the statistics. So as I said, कि statistics जो है हम machine learning के लिए जो लगने वाला है statistics, data distribution, उसके बाद data का behavior, उसके बाद hidden patterns find करना, the relationship between the features, those we will be looking into
and that will be our next module. But in this first module of Python, there are a few things which I will again explain over here as a practice. So you will be having that practice and also that understanding कि हम उसी को लेके आगे कैसे explore करेंगे data को. And on that topics, let me open our VS Code. So one second, let me check with VS Code here. Let me open it. And this group by, yeah, I think yes, last session there was some like we stopped on the group by, I think, and then we like our session got ended. So let it open. And then we will today what we are going to learn. So we are going to import the actual data, the CSV data, Excel sheet data. We will see how to explore the data, the behavior and the shape and all. Each and everything we will be learning today. So yeah, last session we saw this kind of distribution of the data, and this is very like basic. There are number of things which we will be looking into. Yeah, this part. So yes, guys, in the last session, we were looking into the group by wala part, and then I ask as a curiosity, I ask you, okay, just explore the meaning and what are the figures which are populating over here. तो वो सब करेक्ट है या फिर आपके साइड में भी आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और बताइए मुझे कि ये ग्रुप बाय ने जो कैलकुलेशन हमें शो अप किया है दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट और इज देयर एनी मिसिंग थिंग इनटू दिस. सो आई होप कि आपने इस पे थोड़ा एक्सप्लोर करने का कोशिश किया होगा, प्रयास किया होगा. एंड द थिंग इज ये we have seen all these things in the last session, so I hope you will, like, if you are missing anything or if you want if you have any doubt whatever we have covered, you can ask even at the end of this session as well. So no worries on that. And even if you want to ask anything whatever we have covered, you can please feel free to raise your hand or be unmute and we will discuss on that one. In between, if there is any internet connectivity issues, please let me know as well. And Moin, I think now for this platform, the screen is okay na from your side, like it is like full screen and on your side there is no issue. Yes. What we observe on graphic. No, it's better than that. It's Better. actually full screen. Yeah. Okay. All right. Thank you. So yes, so yeah, let's start from here and then we will move gradually. So the thing is, what this group by is doing. So this was our data, like this was the data which we were exploring, and here you can see the just we have structured data in a way that at least we will be getting the groups similar, like similarity by name. So here we know like Alice is here. Let's say this is another Alice in our data. As of now, this is temporary data, but we will move to the actual data. So just wanted to see if we group by name, if we group the data by name, and then if we are able to perform the operations. So there are a number of operations like finding the mean value, then the max value, aggregate value, and all these things. So yes, here if I name like if I implement the group by operation on name, we will be seeing the data of the records which are grouped by the specifically with the names. So that's the reason we are able to see the data over here when we executed this. So yeah, so these are the groups. Alice is here, Bob is here, Charlie is here, and the data. So age, if you calculate the age, let me open this Excel add-on and we will just have a small calculation and then we will just move ahead from here. Okay. All right. Yeah. So let's see what are the ages of these different Alices. Like they are same with the name, but okay. This Alice is having age is 25, and for this Alice, the age is 5, and this Alice age is, I guess, 5. Yeah, 5. Nah. Okay. So yeah, total is 25. So we are checking with the like average, mean, and in last session we have discussed mean and mean, like minimum and the mean wala. So
एवरेज वाला मीन हम देख रहे हैं अभी। एंड जब भी हम ग्रुप बाय करते हैं तो वी नो ना हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस उस पे यूज करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस से आप पता कर सकते हो कि जैसे कि देखो मीन निकालना, उसके बाद उसकी टोटल या सम निकालना, एसवीएम सम वाला। तो फॉर दैट रीजन वी यूज टोटल निकालना, मतलब सेम थिंग। फॉर दैट वी यूज द ग्रुप बाय फंक्शंस। तो हमने एसक्यूएल में पढ़ा है कि एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शंस का हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। एंड फॉर दैट रीजन वी हैव चेक फॉर द एवरेज वाला ऑपरेशन हमने देखा है, जैसे कि मीन। वी आर कैलकुलेटिंग द मीन, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर applying the group by method on that particular let's say data on that particular फीचर, लाइक नेम फीचर पे हम ग्रुप बाय करके उसका मीन निकाल रहे हैं। तो फिर जैसे मैंने बोला डेटा स्प्रेड, तो फर्स्ट एलिस जो था, मतलब ऐसे समझो कि एलिस नेम के 3 बंदे हैं, सेम नेम है, और हमको जस्ट उनका या फिर ऐसे ही समझो कि भाई एक ही बंदा है, बट ये है आपकी जनवरी मंथ की सैलरी, ओके, सैलरी स्लिप है, हाँ ऐसा समझो। और यू कैन जस्ट कंसिडर कि भाई एज रिलेटेड हम देख रहे हैं। तो मे बी लाइक दिस डेटा इज हिस्टोरिकल डेटा और यहाँ का डेटा ऐसा है। तो सेम बंदा है, उसका 25 अभी इस रिकॉर्ड में दिख रहा है, जब वो छोटा था 5, मतलब ऐसे है। फॉर दिस जस्ट अ सेक कि भाई अपने पास ऐसा डेटा है, हमने उसको एडजस्ट किया था एक्चुअली उस हिसाब से, तो रिकॉर्ड से अपने पास तो एज बता रहा है, और एज का मिनिमम वी आर कैलकुलेटिंग। तो एलिस एज वो पर्टिकुलर सीन पे उसका ये एज था, उसके उसके बाद उसका 5 5 और 25 ऐसा उसका एज दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 35 डिवाइड बाय, फिर मीन अगर निकलते तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो उसका जो एवरेज आएगा वो बराबर है इतना 11.66, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो व्हाट दिस ग्रुप बाय इज डूइंग, इट जस्ट ग्रुपिंग द एग्रीगेशन ऑफ बेस्ड ऑन द नेम जिस पे हमने उसको अप्लाई किया, उसके ऊपर उसके बेसिस पे वो दैट इज जस्ट डूइंग द ग्रुप बाय, एंड देन व्हाट एवर द ऑपरेशंस वी आर अप्लाइंग टू इट, इट इज अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल एज पे तो किया, सैलरी पे अगर क्रॉस चेक करोगे तो यू विल गेट द, एंड आई थिंक जैसे मैंने बोला था कि आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो आपने, आई होप कि आपने एक्सप्लोर किया होगा। देखो 1 2 एंड 3, तीनों 5,000 सैलरीज है, तो उसको 5,000 प्लस 5,000, 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, 50,000 डिवाइड बाय 3, will you will get the 5,000, and which is there. So this group by function is giving the proper aggregate values based on the field where we have applied to it, ये वाला तो उसको हमने मीन दिया था। तो ये बताने का कारण ये था, यहाँ पे हम रुक गए थे, उसके बाद इसको एक्सप्लोर किया। आई सेड कि भाई आप गाइज इसको थोड़ा देखो, और जो भी रहेगा उससे आगे बढ़ के हम ये इससे डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। एंड आई होप रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड ये वाला जो चीज दिख रहा है आपको, तो ये जस्ट एक स्नैपशॉट आप बोल सकते हो, मैंने एक जस्ट आइडिया दिया आपको, बट डोंट वरी ऑन दिस। व्हेन वी विल बी मूविंग टू स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद एक्सप्लोरेटेड डेटा एनालिसिस, तो उसमें 2D 3D डेटा का बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्लॉट टाइप्स, सब सब हम बराबर डिस्कस करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो गाइज जैसे कि मैंने बोला लास्ट सेशन में हमने एक टेम्पररी एक डेटा जेसन डेटा फॉर्मेट में उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। बट इन रियलिटी ओके, whenever we will be generating a synthetic data, तो सिंथेटिक डेटा जो टर्मिनोलॉजी है, आई विल एक्सप्लेन दिस व्हेन वी विल बी गोइंग विद द ईडी। बट जस्ट नाउ ऐसा समझो कि ये जो जनरेट हुआ है ना कस्टमाइज डेटा which is generated by us, this is kind of synthetic data, but in real practice in the organization, whenever there will be need of synthetic data, this will be we will covering in detail in our EDA वाला topic. But just for understanding the basic functions, I done this कि भाई नॉर्मल एक छोटा वाला सिंथेटिक डेटा बना के हमने एक्सप्लोर किए थे फंक्शंस, ये बेसिक फंक्शंस। बट नाउ इन एक्चुअल क्या होगा, एज अ डेटा लेट्स से डेटा साइंटिस्ट, AIML इंजीनियर, या इवन अ डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर भी जो भी काम करते हैं वो भी मतलब प्री प्रोसेसिंग वगैरह वो लोग भी करते हैं, तो उसका भी हम थोड़ा बहुत उनका भी जो काम वो भी करते हैं, वो भी तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे डेटा को लेना, डेटा को एक्सप्लोर करना, उसके बाद डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके उसका प्री प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब हम धीरे धीरे अब उसको देखना है। और सेम चीज डेटा साइंटिस्ट, तो जब भी अगर ऐसा समझो कि डेटा इंजीनियर्स ने उनके साइड से डेटा को क्यूरेट करके प्री प्रोसेस करके थोड़ा डेटा हमको दिया, बट एज अ बिजनेस लॉजिक हमको पता है एज अ डेटा साइंटिस्ट वॉट एवर डेटा दे आर शेयरिंग विद अस, तो उसको एक्सप्लोर करना दैट इज आवर टास्क। एंड वो टास्क जो शुरू होता है, तो वो शुरू होता है, चलो यही से करते हैं फिर इसको, इसी से आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज या चलो मैं यहीं पे एक सेल ऐड करके इसी नोटबुक को एक्सटेंड करता हूँ, नहीं तो फिर मैं दूसरा भी एक नोटबुक बना सकता हूँ, बट आई थिंक दैट इज नॉट नीडेड। और इवन अगर
whenever it will be needed, we can do it. Like simply ये सेल वहाँ पे न्यू नोटबुक बना सकते हैं, उसमें कोई दिल नहीं. बट या जस्ट फॉर टाइम बीइंग ना, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन फ्रॉम हियर. तो न्यू सेक्शन पे एज आई सेड कि भाई आपको अगर नोटबुक को एकदम प्रॉपर विजुअलाइज करके एकदम प्रॉपर बनाना तो यू कैन डू एनीथिंग. तो यहाँ पे मैं जस्ट एक मार्क डाउन दे रहा हूँ, और आई एम लिखूंगी न्यू सेक्शन करके मैं दे देता हूँ. हाँ? तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो अपने साइड से. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो गाइज, in reality in the sense whenever we will be getting data ना, तो डेटा लेने के लिए we will be using we will be importing our pandas. As I said कि we are now discussing and exploring the pandas data frame. तो pandas data frame to deal with our data, whatever the data we are receiving. तो very first step, you know what we do, we import our pandas library. ठीक है, तो ये तो आप पूरा ध्यान में रख दो. pandas हमको लगेगा, numpy हमको लगेगा, चलो उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ. ये आपको मतलब हमेशा ये बेसिक लाइब्रेरीज है, एज अ स्टैंडर्ड जो भी है आपका, उसके हिसाब से आप इसको इंपोर्ट करोगे. तो फॉर श्योर आप ये करोगे. एंड आई होप कि आपने भी प्रैक्टिस अभी शुरू कर दिया है, आपका जो भी प्रैक्टिस है. एंड इवन आई एम स्टार्टेड गेटिंग द असाइनमेंट्स. मतलब अभी कुछ बंदे हैं, जैसे अमोल ने मुझे गिटहब पे, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग व्हाट एवर द असाइनमेंट आई एम शेयरिंग ना गाइस. ओके, सो दिस इज वेरी गुड इंस्ट्रक्शन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आई विल से कि whenever I will be giving some assignments to you, please make sure you will be creating your GitHub repository. Okay, आप उस GitHub repository पे आपकी असाइनमेंट्स और जो भी टास्क है ना, उसको वहां पे आप अपलोड कीजिए. द रीजन इज के मतलब धीरे धीरे करके आपका एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर, मतलब AI/ML इंजीनियर का एक प्रोफाइल बन जाएगा. तो अभी तो ठीक है, इट्स ओके, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, बट क्या पता ना कभी भी उसकी जरूरत लग जाए, और उस टाइम पे क्रिएट करोगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो आप धीरे धीरे अभी से शुरू कर दीजिए. मतलब जब भी जो उसकी जरूरत लगेगी तो इट कैन बी शोन टू लाइक द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन के भाई यस, दिस गाय इज ऑलरेडी वर्किंग एंड ही हैज एक्सपीरियंस, और ये बहुत पहले से भी काम कर रहा है इस पे, डेटा साइंस पे. तो दैट्स द रीजन व्हाट एवर द असाइनमेंट्स आई एम शेयरिंग विद यू, ट्राई टू अपलोड दोज ऑन द गिटहब, क्रिएटिंग योर रिपोजिटरी. एंड अगेन, अगर रिपोजिटरी क्रिएट करना गिटहब का अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो फील फ्री टू मेंशन हियर, मेंशन इट हियर, सो दैट आई विल कंडक्ट 15-20 मिनट्स का मैं गिटहब का सेशन आपके लिए ले लूंगा. ठीक है, तो ठीक है, चलो लेट्स मूव. नाउ देयर आर टू थ्री थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग, लाइक एज ऑन द बेस, लाइक हम बेस लेवल पे अभी भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ना, तो देयर आर टू थिंग्स के हाउ टू टेक, लाइक टेकिंग द डेटा, लाइक इंपोर्टिंग द डेटा. हाँ, इंपोर्टिंग द डेटा सेट. ओके, तो इंपोर्टिंग द डेटा सेट. So as I said, there are two things. Those are important. First is whatever the data which is available, which is shared to you in CSV format, Excel sheet format, and these are the two very like generalized format. इसी format में आपको डेटा मिलने वाला है ज्यादा करके. Then the second is if in some libraries ना, if the data is already loaded in the sense के सीखने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, मशीन लर्निंग को इनिशियल स्टेज पे सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप यू कैन यूज दैट डेटा एज वेल. तो आई विल टेक यू on the part where we import the data, actual data. हाँ, बट बिफोर दैट आई थिंक हमको इसका भी एक नॉलेज चाहिए, और वो नॉलेज, लेट मी टेल यू कि इफ देर इज वन मोर लाइब्रेरी, इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस. ठीक है, एसएनएस मतलब एक एब्रिविएशन मैंने दे दिया. सीबॉर्न एक लाइब्रेरी है गाइस. तो ये सीबॉर्न लाइब्रेरी में ना आपको बहुत सारे डेटा सेट प्रीपेड, मतलब बनाए हुए डेटा सेट आपको मिल जाएंगे. अगर मेरा वॉइस बढ़ रहा है तो सॉरी फॉर दैट ना, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज ओनली आई एम रेजिंग माई वॉइस. ठीक है, सॉरी. तो दिस इज द लाइब्रेरी वेयर यू विल बी गेटिंग द डेटा सेट्स, एंड उस डेटा सेट पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी चीजें. बिकॉज या दिस लाइब्रेरी एंड दिस गाइज आर मेकिंग श्योर we have enough number of data sets. So if I print here, see, so load data set अगर हम करते हैं तो for example if I want to get the names of data set, get the name. ठीक है, हाँ, सी इट वाज टाइटैनिक इज हियर. तो आप टाइटैनिक का डेटा आप जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन आप यूज कर सकते हो. देन देयर इज लाइक नंबर ऑफ डेटा सेट. लेट मी चेक. टिप्स का है, चलो टिप्स. या
ये इसको हम देखेंगे बिकॉज द रीजन कि देर आर लाइक बिल है, टिप है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर उसके बाद कैटेगरिकल वैल्यू है, फिर उसके बाद हमारा थोड़ा मतलब एक गुड शेप में एक वैल्यू है जिसको हम देख सकते हैं. यू विल एक्सप्लोर टाइटैनिक एज वेल एंड वी विल लुक इनटू डिफरेंट डेटा सेट. डेफिनेटली वी विल सी दोज थिंग्स. ओके, तो मैंने अभी के लिए क्या किया, एक सीबॉर्न लाइब्रेरी में जो लोडेड डेटा था जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पज, we are using that data over here, and then we will be exploring our filters, then the number of the important functions which we have already explored on the data frame. ठीक है, तो now I have loaded this data. Okay, so you can see this data, but let me take it into, let's say, in a data frame. अगर मैं इसको data frame में लूंगा तो now we are having a data frame of tips data. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट फंक्शन गाइस, अगर आपने लास्ट सेशन का कुछ प्रैक्टिस किया होगा तो वेरी फर्स्ट फंक्शन, अगर हमको डेटा क्या है वो देखना है तो व्हाट डू वी डू, वी जस्ट टेक अ सैंपल. तो ये सब चीजें जस्ट रिपीटेशन है, प्रैक्टिस है आपके लिए. और लेट मी डू इट फास्टली. मैंने हेड के बारे में आपको बताया था, तो हेड इज वन थिंग वेयर वी कैन जस्ट सी अ सैंपल लाइक इनिशियल 5 records of our data so that we will get the idea कि भाई what is the am I audible? Yes, maybe there is some internet. Yes, yes, you are audible. हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का मेरे साइड पे एक ये आया था मैसेज कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल. सो आई विल चेक, अगर अदरवाइज आई विल शिफ्ट टू अनदर राउटर इफ द. Your internet is not stable. बीच बीच में जाता है. हाँ, तो अगर ये कंसिस्टेंटली हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल शिफ्ट टू अनदर राउटर देन. तो अगर ठीक है, फिर Okay. से अगर ये आया इशू ना, तो अमूल प्लीज लेट मी नो, आई विल शिफ्ट टू अनदर राउटर. Okay. उसमें थोड़ा 5-10 सेकंड लग जाएंगे उसमें, कोई नहीं. ठीक है, देन ओके. यस, सो इनिशियल फंक्शंस तो हमने डीएफ हेड हमने लास्ट टाइम देख लिया था. अगर इन्फो हमने देखा था, तो इस पर्टिकुलर डेटा पे मतलब एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको, अरे ये मार्कडाउन हुआ, शायद मार्कडाउन था वो. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे या कोई भी आपको डेटा मिलेगा ना, तो दीज आर द इनिशियल फंक्शंस व्हिच यू हैव टू एक्सप्लोर गाइस. कि आपको ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस में या एनालिसिस करते टाइम या जो भी हम आगे बढ़ेंगे ना, तो डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये फंक्शंस लगेंगे. तो इस फंक्शंस को आप बाय हार्ट कर लो कि भाई डेटा सेट एक्सप्लोर करना क्या है, उसमें देखना इन्फो के बाद. ओके, हाउ आवर डेटा इज स्प्रेड. ओके, आर देयर एनी नल वैल्यूज? नो, देयर आर नो एनी नल वैल्यूज. ठीक है, सो व्हाट इज द टाइप? सो फ्लोट इज देयर ना, फ्लोट टाइप है. उसके बाद फ्लोट है, कैटेगरी टाइप है, कैटेगरिकल डेटा है. कैटेगरी इन द सेंस जैसे क्लासिफिकेशन होते हैं ना, तो उस टाइम में कैटेगरी, हाँ उस टाइप पे कैटेगरी. उसके बाद ये इंटीजर वैल्यू है, इट इज गिविंग अस द इन्फो के हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, तो फ्लोट कितने हैं, इंटीजर कितने हैं, और उसका मेमोरी साइज कितना है. सो दिस इज जस्ट आपने जैसे कि बाय हार्ट इसको कर लो. ये सब ये इनिशियल फंक्शन है. आगे उसको एक्सप्लोर करते हैं इस डेटा को. तो डिस्क्राइब, df.describe. ठीक है, तो ds.describe में हमको एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिलते हैं इसमें. ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन द सेंस गाइस, आपको यहाँ पे पता चलता है कि भाई टोटल नंबर, मतलब ये भी एक है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं. ओके, 244. मीन, तो जो भी इंटीजर वैल्यूज है ना आपने, इंटीजर और फ्लोट, उनका मीन यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट हो जाएगा. सो दीज आर द फ्लोट एंड इंटीजर डेटा. तो उसको बराबर उसने डिस्क्राइब में ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दिया. ये हेलो. चला ही गया ना पूरा, वॉइस हाँ. है वो एग्जिट हो गए. हाँ नहीं हाँ, नहीं, एक सेकेंड. चला गया. यस यस यस, am I audible guys? Yes, yes, you are audible. ठीक है, वो डायरेक्टली Yes, चला yes, गया yes. था. Now लेट you मी are audible. स्विच टू अनदर. ये आज थोड़ा है ना यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, बट ओके. तो हाँ, का थोड़ी देर latency है मैं आपके स्विच कर रहा नेटवर्क हूँ, की तो थोड़ी देर latency. में ये थोड़ा सा हो सकता है मैं फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा. तो आप यहीं पे बने रहिए एंड लेट मी स्विच टू, क्या करेगा ये, जियो राउटर था विच आई वाज यूजिंग, बट इट्स ओके. तो चलो ये इससे देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या. अमोल, ये जियो का राउटर में क्या केपीआई प्रॉब्लम हुई? और गाइस, latency आता आई है होप कि मैं नेटवर्क में. दोबारा कनेक्ट हो गया एंड मैंने अभी राउटर भी स्विच कर दिया है. मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो, आई एम हाँ, अभी विजिबल है. ओके, नहीं, विजिबल, आई मुझे एम नहीं हो रहा ऑडिबल. है. हाँ, थोड़ा क्या हो रहा है ना, मुझे ये आज का नेटवर्क का इशू इसलिए आ रहा है, मैंने पूरा क्लोज कर दिया है सब जहाँ से आना चाहिए रेंज. द रीजन इज कि बाजू में एक मंदिर है और वहां पे भजन चल रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन ना. वो अगर मैं क्लोज कर देता हूँ खिड़की, तो वो क्या हो जाता है, रेंज में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. एंड अगर ओपन करता हूँ ना, तो आप लोग अगर कुछ बोलोगे बीच में या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे चिल्लाना पड़ रहा है. तो इट्स ओके गाइस, इट हैपेंस, बट आई थिंक नाउ लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन.
I hope my screen is visible. Hi. Yes. And yes. So let's yeah. So we were discussing about this describe function. So describe function में हम we will be getting the mathematical हेलो results. We will be getting the mathematical. सर, अभी तक आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हुई। नहीं हुई स्क्रीन है। विजिबल नहीं। ओ हाँ आता रही ओके डिले है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आज होगा ही ऐसा। तो होता है मतलब देर आर 2-3 थिंग्स ना कि क्या हो आवाज जाता है। बहुत शाम शाम होते होते ये थोड़े दिक्कतें कट आनी हो रहा शुरू है, हो आवाज जाती है। बहुत। आई होप कि आई एम ऑडिबल गाइस। ये लोडिंग का यस मैं जस्ट आई एम जस्ट सर, बहुत आवाज कट हो रहा है आपका कट हो रहा है ना। कंटिन्यूअसली। आ ओके यस सर, ओके। यस। तो कैसे आई करें थिंक तीसरा राउटर जो है उस पर स्विच करूँ या नहीं ये थोड़ा इंटरनेट का भी इशू है। तो एक काम करता होगा सिर्फ एक एक चीज आप कंफर्म कर दीजिए कि अभी मैं लेट मी ओपन द विंडो। ठीक है। अभी मेरे साइड से बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है क्या। नॉइज नॉइज आ रहा है गाइस। मेरा आवाज आ रहा है आपको। नहीं। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है आपका। आवाज आ रहा है। ठीक है ठीक है। ओके तो लेट इट बी। आई होप कि लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन एंड दैट ओके इज इट विजिबल माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। यस यस। ओके आपका मुझे थोड़ा सा आवाज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बट इट्स ओके। चलो लेट मी कंटिन्यू। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं रुक जाओ या कुछ भी हो तो मुझे बता देना एंड डोंट वरी। अगर ऐसा भी है ना आज को तो कंटिन्यू करेंगे और इसी चीज को बाद में भी कंटिन्यू कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि वेस्ट जाएगा। तो द थिंग इज नाउ दिस डिस्क्राइब फंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस डिस्क्राइब फंक्शन में एज आई सेड के वी आर गेटिंग द मैथमेटिकल रिजल्ट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इन कैलकुलेशंस में ये सब चीजें आपको ग्रेजुअली जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ ही जाएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइक 25 परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन 50 परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन 75 परसेंटाइल एंड मैक्स। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वन थिंग विच टेल अस कि भाई डेटा हाउ द डेटा इज स्प्रेड। तो एक काम करते अभी तो इतना आपको ये सब चीजें नहीं समझेगा। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए जब आगे बढ़ेंगे आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन डिटेल। तो अभी जो अपने को जो बेसिक पाइथन का जो सीखना है ना उसको देखते हैं फॉर मशीन लर्निंग। तो ये जो फंक्शन है डिस्क्राइब वाला ये ऐसे समझो कि ये पेंडिंग रहेगा और जैसे ही हम स्टैटिस्टिक्स और ईडीएम में घुसेंगे आई विल गिव मोर डिटेल्ड आइडिया अबाउट दिस थिंग्स। ओके सो लेट्स मूव। अगर फिर ये जस्ट बेसिक फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हमने देख लिया देखो क्या क्या देखा हमने हेड देख लिया इन्फो देख लिया इसमें डिस्क्राइब देख लिया। देन हाँ शेप शेप करके एक होता है इट गिव्स इट ये हमको बताता है शेप कि भाई आपका डेटा का रोज और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है और जो भी ये बताता है दिस इज अ टुपल गाइस। तो टुपल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि टुपल में ये जो भी वैल्यूज है वी कैन नॉट एडिट और अपडेट दिस वैल्यूज। ठीक है द शेप से हमको शेप मिलता है द लाइक आइडिया कि भाई डेटा अपना कितना रोज और कितना कॉलम्स है उसमें। अगर मैं डीएफ डॉट कॉलम्स करूंगा अगर आपको पूरे मतलब ये कैसे है अभी तो छोटे हैं 1 2 3 4 कॉलम है बट जब लार्ज डेटा रहता है जिसमें 150 कॉलम्स या लेट से 70 80 200 कॉलम्स तो उस टाइम पे ये डीएफ डॉट कॉलम्स आपको कॉलम्स की लिस्ट देता है ना। कॉलम्स की लिस्ट देता है कि कितने कॉलम्स है। तो दिस इज आवर इसमें देख रहे हो आप ये पूरा लिस्ट दे रहा है टोटल बिल है अपने पास टीप है सेक्स स्मोकर डे टाइम साइज ये अपने फीचर्स है एक्चुअली डेटा के फीचर्स। ठीक है ये तो हमने देख लिया था। अभी फिल्टर को एक्सप्लोर करते हैं फिल्टर। अगर गाइस और मैं फिर से जस्ट एक डेटा को देखने के लिए मैं यहाँ पे डीएफ हेड करके तो आपको आइडिया आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है तो अभी यहाँ पे मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि अपना जो बिल है बिल ये बिल में मेरे को ऐसा बिल चाहिए विच इज ग्रेटर देन सम स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 23.68 है इन टर्म्स ऑफ लेट से रुपीज है रुपीज या डॉलर आप जो कंसिडर करो मुझे ना एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर का डेटा चाहिए। तो उसको फिल्टर कैसे लगाऊंगा मैं और उसको मैं डीएफ में कैसे दिखाऊंगा। अगर किसी ने मुझे कंडीशनल बेसिस पे बताया कि भाई शो मी ऑल द बिल्स
which are over in the sense which are above some let's say like a random value, let's say total bill. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करूंगा, मुझे बिल देखना है जो लेट्स से मैं बोलता हूँ 25 के ऊपर का पूरा बिल मुझे देखना है, तो उसके लिए आप कंडीशन कैसे लगाओगे इसमें टू सी दिस? तो हाउ यू कैन डू दैट? सी डीएफ डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में यू कैन ऐड द फिल्टर्स। फिल्टर कैसे ऐड करोगे आप? डीएफ, ठीक है। डीएफ में क्या यहाँ पे आ गया, देख डीएफ में क्या है अपने पास? टोटल बिल, जो जिसपे हम देख रहे हैं ना, टोटल बिल। ओके, तो टोटल बिल हम देख रहे हैं, हमको एक स्पेसिफिक फिगर के ऊपर वाला बिल चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला कि 25, तो 25 रुपीज बोलो, हाँ ठीक है, रुपीज बोल देते, उसके ऊपर के मुझे पूरे डेटा चाहिए, जितना भी डेटा है। तो अगर आप इफ यू आर अप्लाइंग दिस फिल्टर, यू विल बी गेटिंग द एंटायर डेटा आपके इसमें सिर्फ फिल्टर। मगर मतलब फॉर एग्जांपल आप एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल नेम वेयर लेट्स से टोटल बिल इज ग्रेटर देन 25, तो सेम काइंड ऑफ ऑपरेशंस यू कैन डू इट हियर। आपको एसक्यूएल का लिखने की जरूरत नहीं और ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट सिंपली अप्लाई दिस काइंड ऑफ फिल्टर्स, कंडीशनल फिल्टर्स इसको बोलते हैं। क्या किया यहाँ पे? मैंने डीएफ लिया, डीएफ में मैंने ये कंडीशन डाली, किसकी डालनी है अपने को? टोटल बिल की, बराबर। तो टोटल बिल का वैल्यू, तो ये देखो गाइस, अगर मैं इसको सिर्फ प्रिंट करूंगा ना, तो क्या होगा? देखो आपको बताता हूँ, सिर्फ इसको प्रिंट अगर करूँ, अरे डिलीट हो गया क्या? नहीं, नीचे चला गया, बी में चला गया ना। लेट मी डू इट ए करता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, देखो टोटल बिल का सिर्फ मुझे चाहिए ना ये वेरिएबल, तो ये क्या, इट विल गिव मी ओनली द वैल्यूज ऑफ टोटल बिल कॉलम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कंडीशन में, सिर्फ उस कॉलम के वैल्यूज ग्रेटर देन 25 वॉट एवर आवर एक्सपेक्टेड फिगर वो दो, और हमको एक डेटा फ्रेम दे दो। बट देर इज नो चेंज इन डेटा फ्रेम। हाँ, चेंज कब होगा? अगर मैं यहाँ पे कुछ टेम्पोररी या DF1 करके ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने एक दूसरा डेटा फ्रेम बनाया, उस दूसरे डेटा फ्रेम में ये मैं कंडीशनल डेटा फ्रेम बनाया, और मैं इसको एंटर मारता हूँ। ठीक है, तो इस डेटा में वो पूरा वैल्यू आ गया डेटा फ्रेम। और अगर मैं इसको शेप देखने जाऊंगा, तो सी यहाँ पे अभी शेप उसका कम हो गया, 55 रिकॉर्ड से एंड 7 कॉलम्स, मतलब कॉलम्स तो सेम ही रहेंगे, रिकॉर्ड्स कम हो गए। क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव अप्लाइड द फिल्टर। और वो ऐसे कंडीशन डाली हमने कि भाई 25 से ऊपर के बिल के सब रिकॉर्ड्स दे दो, और उसने दे दिए। ठीक है, उसने दे दिए, और आप यू कैन एक्सप्लोर। तो ये एक बेसिक एग्जांपल दिया मैंने आपको फिल्टर का, बट यू कैन एक्सप्लोर दिस एज पर योर प्रायोरिटी बोल सकते हैं, या कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको एक्सप्लोर करो। बट दिस काइंड ऑफ फिल्टर्स आई विल बी गिविंग सम असाइनमेंट्स टू यू टू अप्लाई द फिल्टर्स। तो अगर कोई बोलता है कि आपको मुझे ये रिपोर्ट्स बनाने, मतलब देखो पावर बीआई में अगर ये चीज होता है ना, क्या कि भाई आई वांट टू जनरेट अ रिपोर्ट और वेयर द टोटल बिल इज अबो 25, तो क्या होता है पावर बिल में, सिर्फ पावर बीआई में एक यूआई का जैसा टूल रहता है, उसमें सिर्फ सिलेक्शन करना पड़ता है कि भाई टोटल बिल, फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे एक टूल है पावर बीआई का, ठीक है, साइड में रहता है इधर, और वहां पे ऐसे ड्रॉप डाउन रहते हैं, एंड यू वांट टू जनरेट रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट बनते हैं उसके, ग्राफिकल रिपोर्ट एंड अपने नॉर्मल रिकॉर्ड्स वाले रिपोर्ट, मतलब जैसे CSV फॉर्मेट वाले रिपोर्ट। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन रहता है, और ड्रॉप डाउन में बोलते हैं कि भाई आपका जो मतलब कंडीशन यहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई होता है, और वो सब यूआई में होता है। तो क्राइटेरिया में क्या है कि टोटल बिल, अपना जो भी डेटा है उसका टोटल बिल, और यहाँ पे कंडीशन रहता है सही, ग्रेटर देन, लेस देन, जो आपको सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन, और व्हाट एवर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट। और यहाँ पे आप ओके बोलते हो ना बटन पे ओके बोलते हैं, तो यहाँ पे रिपोर्ट दिखता है अपना पावर बीआई टूल में। और ये रिपोर्ट आप शेयर करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है कि भाई शेयर करो, बटन पे क्लिक करो। बट गाइस ये सब तो आपने यूआई में हैंडल कर लिया, ओके, बट बैकग्राउंड में क्या हुआ ये आपको पता है? तो बैकग्राउंड में क्या होता है, यही वाले ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं ऐसे, और होने के बाद यहाँ पे उसका वो जो भी डेटा पॉपुलेट होता है वो हो जाता है। सो द थिंग इज दिस लाइक पावर बीआई का जो यूटिलाइजेशन है, तो उसमें कनेक्शंस वगैरह वो सब चीजें जब मगर एक्स्ट्रा अगर कुछ पावर बीआई का सेशंस अगर ईडीए के बाद लूंगा ना, तो उस टाइम पे हम पावर बीआई को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वाला फिल्टर यूज करने का और यहाँ पे कंडीशन यूज करने का पर्पज यही था कि यू गाइस शुड नो द आइडिया कि कैसे फिल्टर्स अप्लाई होते हैं। देन So Gaurav, can we consider data frame as a database where we can keep the data and वन सेकेंड ना आदित्य, लाइक लेट मी कम क्लोज टू द लैपटॉप। आपका जो क्वेश्चन है, आप कैन यू हाँ। प्लीज रिपीट इट? मेरा क्वेश्चन ये था कि कैन वी कंसिडर डेटा फ्रेम लाइक अ डेटाबेस वेयर वी कैन कीप द Yes, you data are right. Yeah, and you are accordingly add the filters or some correct. query to filter out Yes. filter out those data. Yes. Actually, data frame is a data. So there are two things.
कि अगर मतलब डिपेंड आपके ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस केस कैसा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। अगर एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम मतलब एक एग्जिस्टिंग डेटा पे अगर आपका कुछ मशीन लर्निंग का यूज करना है, तो यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ पाइपलाइन। पाइपलाइन में यहाँ पे आपको जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि भाई इंपोर्ट कैसे करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है, दो चीजें। एक तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हाँ मतलब वी डू नॉट डायरेक्टली टेक आवर ऑर्गेनाइजेशन डेटा इन द नोटबुक। हम क्या करते हैं उसको, जो भी डेटा हमारे पास, मतलब द रीजन इज देयर आर 2-3 रीजंस। हमको डायरेक्ट वहां पे कनेक्शन का बोलते हैं एक्सेस तो हमको मिलता नहीं, बिकॉज इट इज अ सिक्योर डेटा। तो हमें क्या होता है, ये डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं, पाइपलाइन बिल्ड करके ना वो डेटा हमारे पास दे देते हैं। तो दैट डेटा वी जनरली कलेक्ट इनटू CSV फॉर्मेट और एक्सेल फॉर्मेट में होता है। मतलब वो अपने डेटाबेस का ही रहता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हम डील कर रहे हैं। द सेकंड पार्ट इज के लेट्स से आपको अगर हमको जो डेटा चाहिए, दैट डेटा, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब इट विल बी मोर क्लियर इफ आई टेक द प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में ऐसा हुआ, जैसे कि आई वाज वर्किंग ऑन वन प्रोडक्ट। तो मैं स्क्रैच से एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था, इट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो वी वर वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट। तो दैट प्रोडक्ट वाज काइंड ऑफ लाइक, ये प्रोडक्ट का काम ये था कि अगर उस प्रोडक्ट पे हमारी मतलब ऐसा, लेट्स से देयर आर कुछ साइट्स थी, कुछ मतलब देयर आर लाइक, ये प्रोडक्ट यूज होता था कैलिफोर्निया, मतलब नॉट इन इंडिया बट आउट ऑफ द इंडिया। तो उसमें ये जो कुछ साइट्स थी, प्रॉपर्टी की साइट्स थी, फॉर एग्जाम्पल सिक्वाया, और देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट रिलेटेड साइट्स थी। तो वहां पे यूजर्स आते थे और उनको क्या करना रहता था, उनको स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करना या रहने के लिए कुछ महीना 2 महीना, वर्किंग प्रोफेशनल अपने मतलब आउट ऑफ द कंट्री, आउट कंट्री से आते थे वहां पे वर्किंग, तो उनको रहने के लिए जगह, वो सब देखने के काम ये वेबसाइट करती थी। हमारा काम क्या था कि उस प्रॉपर्टी वेबसाइट में एक टूल इंटीग्रेट करना, टूल इन द सेंस वन प्रोडक्ट विच विल टेक द इंक्वायरीज बिकॉज कस्टमर्स को बहुत सारी मतलब कस्टमर्स ने, यूजर्स को बहुत सारी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे। तो हम इंक्वायरी लेते थे और उस इंक्वायरी को है ना, तो देर वर मल्टीपल थिंग्स। एक इंक्वायरी को कन्वर्ट करना लीड में, लीड को कन्वर्ट करना कस्टमर में, और कस्टमर को कन्वर्ट करना कंज्यूमर में। ठीक है, तो कंज्यूमर, कस्टमर, लीड। या थोड़े थोड़े टाइम के लिए नेटवर्क अनस्टेबल हुआ था, बट आई थिंक आई एम बैक। तो यस, इंक्वायरी। तो ठीक है, तो अभी इसमें चीज ऐसा था, ये तो सब हमने वो प्रोडक्ट पे हो गया था, स्क्रैच पे। बट आफ्टर दैट ना देर आर मल्टीपल डेटा आना शुरू हो गया था हमारा। व्हेन वी रिलीज दैट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चलने लगा, रेवेन्यू जनरेट होने लगा, ये सब चीजें होने लगी कि जैसे कि इंक्वायरी को लीड में कन्वर्ट करना, लीड इन द सेंस कि भाई चलो अभी उससे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कॉन्वर्सेशन होने के बाद उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना। तो कस्टमर मतलब क्या, उसने परचेस कर ली सर्विस, और परचेस करने के बाद उसको कंज्यूमर बनाना। कंज्यूमर मतलब क्या, कि भाई वही कस्टमर रिपीट रिपीट हमारा सब्सक्रिप्शन लेके हमारा जो भी सर्विस है वो बार बार परचेस करेगा। ठीक है, तो यू नो इट बेटर, दोज गाइज हु आर इन अ बिजनेस एनालिटिक्स और उस चीज में मार्केटिंग। तो द थिंग इज कि वो तो हो गया, सब चल रहा था, अपना प्रोडक्ट था, सब हो रहा था। फिर जो हमारे वेंडर थे, मतलब ये जो है, हम डायरेक्टली यूजर को नहीं, तो इसके वेंडर्स थे, ये प्रॉपर रियल एस्टेट साइट के जो मेन ओनर्स थे ना, तो वो तो इंटीग्रेट करते थे, उसके लिए हमने एम्बेड कोड वगैरह देके। फिर यहाँ पे मशीन लर्निंग का चीज कहाँ पे आता है, मैं मतलब आई नो कि भाई यू गाइज आर मोर क्यूरियस अबाउट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और मशीन लर्निंग वाला चीज। एंड एज आई सेड के ग्रेजुअली जैसे आगे बढ़ेंगे मैं ये सब चीजें आपको बताते रहूंगा। बट या आई नो कि भाई इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा रहता है क्यूरियोसिटी कि यार भाई मतलब एक्चुअल में क्या होता है ये सब चीजें। तो दैट्स द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग गाइज। तो क्या होता है बाद में ना, सपोर्ट टिकट्स आने शुरू हो गए। सपोर्ट टिकट्स इन द सेंस के देर आर वन टूल के भाई जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, इश्यूज है, उसके बाद लेट से इश्यूज है, रिक्वायरमेंट है, न्यू डेवलपमेंट है, या कुछ उनको नहीं समझ रहा है, कुछ फीडबैक है, तो इस टाइप के सब डेटा है ना, सब डेटा जनरेट होने लग गया। उसके लिए कुछ अलग ही था, जिसका डेटा हमारे पास नहीं था, मतलब डेटाबेस नहीं था, बट टेक्स्ट बेसिस पे हमारे पास ये सब आना शुरू हो गया। तो द थिंग इज कि शुरू में कैसा हुआ, फिर ये लेके हमने ना कुछ एक दो जो एम्प्लॉयज थे उनको काम पे लगा दिया था कि भाई आप एक काम करो, ये जो भी टिकट्स आ रहे हैं ना उसको क्लासिफाई करो, आप कैटेगराइज करो उसको, कि ये पर्टिकुलर टिकट है, किस कैटेगरी का है, ये किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है। बट उसके लिए मैन पावर ज्यादा लगने लग गई, मैन पावर ज्यादा लगने लग गई, बिकॉज बहुत सारे ये टिकट्स जनरेट होने शुरू हो गए, मतलब वहां से इंक्वायरीज सब चीजें आने लग गई। तो ये जो काम है ना ये बहुत बढ़ने लग गया। तो तब जाके हमने फिर डिस्कस किया कि भाई इस पे ना मशीन लर्निंग लगाएंगे और इन बंदों का सबका काम बंद कर देंगे मशीन लर्निंग लगा के। तो हमने क्या किया फिर, तो उस टाइम पे ना
वो जो डेटा था दैट वाज नॉट इन आवर डेटाबेस, और जो भी आया उसको हमने ले लिया, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, तो डेटा इंजीनियर ने उसको प्रॉपर वे से फिल्टर सब प्रोसेस करके दिया हमारे पास। तो डेटा आ गया, टेक्स्ट डेटा था, फिर उसमें उसके इंक्वायरीज का ये था, उनका कंटेंट था, तो कंटेंट को उनकी लैंग्वेज थी, तो लैंग्वेज को आइडेंटिफाई, तो उसके बाद हमने फीचर इंजीनियरिंग शुरू कर दिया। तो फीचर इंजीनियरिंग इन द सेंस जो हम आगे करने वाले हैं, अभी आगे बढ़ने वाले हैं, तब मैं बताऊंगा आपको। तो ये शुरू कर दिया उस डेटा पे, और हमने वो एडिशनल फीचर्स बना के देन वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट तो ईडीए वगैरह प्री प्रोसेसिंग सब चीजें की उसको, वो होने के बाद हमने उसका क्लस्टरिंग ग्रुपिंग शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो हमारे पास क्या क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, एसवीएम था क्लासिफिकेशन के लिए, टू अंडरस्टैंड, टू लेबल इट, तो लेबलिंग का ये किया। बट एट द इनिशियल लेवल इट वाज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। तो अनसुपरवाइज और सुपरवाइज आई विल एक्सप्लेन गाइस, ये सब मैं बताऊंगा, अभी जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। एंड द रीजन कि भाई जब क्वेश्चन आया कि ये जो डेटा रहेगा तो हमेशा अपना डीबीएमएस वाला और ऐसा डेटा ही रहेगा कि अपने पास, तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि डेटा हमारे पास जो भी आने वाला है, तो मे बी इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा, या मे बी इट इज ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपको आएगा, तो कुछ भी हो सकता है। उस डेटा को हम जब आगे बढ़ेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये तो हम बेसिक फंक्शंस तो देख ही रहे हैं उसको एक्सप्लोर करने के। उसके बाद हम उसको ईडीए और प्री प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिक्स, जब स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे ना, देन वी विल कम टू नो कि डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, मतलब ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बेल शेप्ड है, या फिर स्क्यूड है डेटा, ऐसा है, या फिर ऐसा स्क्यूड है, तो आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये सब देखेंगे। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन था कि अपना डेटा कैसे और कहाँ से आने वाला है, तो इट विल बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड द डेटा विल बी डिपेंड कि आपका सिनेरियो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है या बाहर का कुछ डेटा है, या फिर फॉर एग्जांपल न्यूज है अपने पास, सेंटिमेंटल एनालिसिस, या फिर जैसे मैं बोला नेटफ्लिक्स के यूजर है तो उनका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, या फिर ऑडियो डेटा है, ऑडियो डेटा तो बाइट्स में रहेगा, या फिर अपने पास हो सकता है टेक्स्ट, सब टेक्स्ट डेटा है, या फिर हो सकता है वीडियो का डेटा है, या फिर इमेजेस हो सकते हैं, इमेजेस। तो ये सब डेटा का अलग अलग टाइप है, और उसको फिर देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। अगर टेक्स्ट है तो टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर रहता है उसको, तो उसको हम यूज करते हैं उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारा डेटा अपने ये डेटा फ्रेम में फिट हो सके और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर पाए। तो बट दिस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। बट एट दिस मोमेंट विथ योर क्वेश्चन ना, ऐसे समझो कि ये अपने पास इस फॉर्मेट में एक बेसिक लेवल पे समझो, उसके बाद तो बहुत डीप में हम आगे बढ़ेंगे। Okay, तो thank you. okay, द थिंग इज कि चलो दिस इज वन फंक्शन वी आर एक्सप्लोरिंग नाउ। सॉरी गाइस, मेरा वॉइस थोड़ा रेज हो रहा है बिकॉज आई एम, द रीजन मैंने बोलता है ना कि मेरे मतलब बैकग्राउंड में देर इज लॉट ऑफ नॉइज ना, तो मे बी अगर मेरा वॉइस रेज हो रहा है तो दैट इज नॉट द रीजन कि मैं कुछ मतलब, ओके। सो आई होप कि एवरीथिंग इज वेल। नेक्स्ट फंक्शन, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा, खाली आपका ही आवाज आ रहा है। क्या हो रहा है, नॉइज नहीं आ रहा है ना बैकग्राउंड, बट क्या हो रहा है ना, ठीक है, दैट इज वेरी गुड कि भाई ये जूम कर रहा है उसको फिल्टर, बट है ना क्या हो रहा है जब बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है, खाली आपका ही आवाज आ रहा है। हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मुझे इतना श्योर है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा आवाज मुझे रेज करना पड़ रहा है बस। बट थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग। फिर वी वर लुकिंग इनटू द फिल्टर्स ना, फिल्टर्स के बाद तो लाइक दिस आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस। जो अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर ऐड करना है, मतलब जैसे मैंने फीचर इंजीनियरिंग बोला था, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि ये मैं नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ उसको, एडिशनल कॉलम या एडिशनल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। एंड इन दैट एडिशनल कैलकुलेशन में अगर जो भी करता हूँ, देखो यहाँ पे दिया है डीएफ बिल, अगर मुझको 0.8 करना है, जैसे हमने टैक्स का देखा था, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसका कैलकुलेशन देखता हूँ, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अगर मैं डीएफ डॉट कॉलम अभी करूंगा ना, तो आपको एक कॉलम बड़ा हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो इन दिस वे यू कैन ऐड मल्टीपल कॉलम्स, आपका डेटा आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो, एडिशनल कॉलम, एडिशनल आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है डेटा के ऊपर उसको समझ के आप नंबर ऑफ कॉलम्स आप बढ़ा सकते हो, जैसे आगे आएगा वन हॉट इनकोडिंग वगैरह, तो वो सब आप फीचर इंजीनियरिंग, तो इसको फीचर इंजीनियरिंग का आप समझिए, दिस फीचर इंजीनियरिंग वेयर यू आर एडिंग द कॉलम्स बेस्ड ऑन योर लॉजिक। एंड प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या, कि आप अपना डेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर नल रहता, चलो इसमें अभी अभी तो नल नहीं है, डीएफ डॉट इज नल करके फंक्शन होता है, ठीक है, इज नल, और उसको आप सम भी कर सकते हो ऐसे। और अगर है तो बताएगा कि भाई यस, ये जो कॉलम है स्मोकर, स्मोकर में 5 वैल्यू नल वैल्यूज है, तो आपको क्लीन करना है, तो फिर आप ड्रॉप, हाँ तो आप ड्रॉप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे
यहाँ पे तो नल नहीं है, तो नल वैल्यूज को ड्रॉप करना छोड़ दो। मुझे अगर कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो हाउ आई कैन डू दैट? तो चलो, ड्रॉप एक फंक्शन है, मतलब यू आर डूइंग अ प्री प्रोसेसिंग ऑफ योर डेटा। ड्रॉप ना, तो ड्रॉप ना से आप क्या करोगे, नल वैल्यूज अगर है तो आप उसको ड्रॉप कर दोगे। और इन प्लेस से क्या होता है गाइस, इन प्लेस अगर मैं ट्रू करता हूं ना, तो उससे ये होता है कि आपको इस डेटा फ्रेम को असाइन करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा इस पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज देर इज नो नल वैल्यूज, बट वेन एवर देर विल बी नल वैल्यूज अगर मिलेंगे ना डेटा पे, तो यू कैन यूज दिस फंक्शन इन प्लेस ट्रू आप कर सकते हो। अगर आपको कॉलम ड्रॉप करना है, df.drop ड्रॉप, तो यू कैन ड्रॉप डुप्लीकेट, आप ड्रॉप कर सकते हो। फिर ये ड्रॉप में ना, ड्रॉप में अगर ऐसा आप लोगे और यहाँ पे अगर कॉलम का ये दोगे, ठीक है, ड्रॉप इज अ फंक्शन, एक्चुअली ड्रॉप इज अ फंक्शन ऐसा, और उसमें आपको देना होगा कॉलम्स। कॉलम्स कॉलम्स इज इक्वल टू आपके कॉलम्स के नाम आप दे सकते हो, तो कॉलम्स के नाम आप एरे में दे सकते हो और उसको इन प्लेस ट्रू बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर यही एडिशनल कॉलम जो मैंने ऐड किया हमने, देखा कि उसको कैसा दिखता है, चलो इसको पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है, फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। अरे सॉरी, df.head, ये ना आप प्रैक्टिस के लिए ये सब करो। हाँ देखो ऐसा दिख रहा है ना, इसको मेरे को ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, हाँ, और अगर मैंने इन प्लेस ट्रू नहीं बोला तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, कॉलम ड्रॉप हो गया गाइस, ठीक है, कॉलम तो चला गया, लेकिन मैंने अगर उसको इन प्लेस नहीं किया ना, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको अगर फिर से एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो आपको मिलेगा वो कॉलम वापस से यही पे, तो आपने तो ड्रॉप किया था। तो द थिंग इज, अगर आपको उसी में अपडेट करना है, किसी को असाइन नहीं करना, उसी में अपडेट करना है, तो यू कैन डू दिस। ठीक है, इन प्लेस टू एक्सिस भी होता है, एक्सिस इज इक्वल टू 1 भी डाल सकते हैं आप, मतलब भाई वर्टिकली वो डिलीट मारेगा कॉलम को, तो इससे भी वो काम हो जाता है। अगर मैं डीएफ करने जाऊंगा ना, तो सी डीएफ में डायरेक्टली चेंज हो गया, उसने अपडेट कर दिया, कॉलम को ड्रॉप कर दिया। तो ये आपको लगेगा प्री प्रोसेसिंग के लिए, जब भी जैसे भी आप प्री प्रोसेसिंग करोगे आगे बढ़ोगे, तो ये चीज आपको लगेगा। उसके बाद मैं आई एम जस्ट टेलिंग द रिक्वायर्ड फंक्शन सर, ये आपको आपको लगने वाले, जैसे कि मैं मेरे को क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, चलो मुझे ना क्वेरी एग्जीक्यूट करना है डेटाबेस में। जैसे हमने वो अपना ये फंक्शन देखे थे ना एसक्यूएल के, हम एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते, तो अगर आपको लगता है भाई क्वेरीज लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो सिलेक्ट क्या कब यूज करना, फिर उसमें कौन से फंक्शंस होते हैं, क्वेरी में भी ड्रॉप रहता है, डिलीट रहते हैं ना, तो देखो एक नॉर्मली आप क्वेरी को इजीली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं df.query, और इसको हमने लास्ट सेशन में भी लिया था, हाँ देखो टोटल बिल इज इक्वल टू, तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपको सब रिकॉर्ड्स मिलेंगे जिसका टोटल बिल है 25 से ऊपर। देखो आपको सब मिल गया जिसका बिल है 25 से ऊपर। आप फिर ऐसे लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिनर। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, आपको डिनर ले, सिर्फ डिनर का टाइम देखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए डिनर करके। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब करना है। डिनर, तो डिनर वाला कितना रिकॉर्ड्स है अपने पास, है क्या, कुछ एरर मारता है क्या, कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, हाँ एरर क्या आया देखते। टाइम इज इक्वल टू डिनर कैन नॉट असाइन, हाँ विदाउट अ टारगेट ऑब्जेक्ट, एक्चुअली ये क्या हो गया, ये असाइनमेंट हो गया, ऐसे होता है क्या देखते। हाँ तो असाइन हो रहा था, दैट इज एरर ना, तो ये डिनर इसको असाइन नहीं कर सकता, तो इस डबल इक्वल टू का ये वहां पे चाहिए था हमको। ठीक है, तो इससे आपको सिर्फ डिनर वाला रिकॉर्ड्स मिल रहे, देखो डिनर्स वाले, और टोटल रिकॉर्ड्स कितने मिल रहे, 176 रिकॉर्ड्स मिल रहे। तो अदर देन डिनर अगर नहीं है, चलो डिनर नहीं चाहिए, आई एम जस्ट चेकिंग दिस वर्क्स, हाँ ये वर्क है, देखो डिनर फिर क्या है, लंच है, फिर तो लंच के बचे हुए जो रिकॉर्ड्स है 68 वो है। तो आपको ऐसे जस्ट एक प्रैक्टिस करना है कि हाउ यू कैन एग्जीक्यूट, हाउ यू कैन मैनिपुलेट दिस डेटा। ठीक है, ये करने का रीजन इसलिए है कि हमको एक प्यूरिफाइड डेटा बनाना है जो आगे मशीन लर्निंग को लगेगा। फिर ये सब सीखने का और करने का रीजन ये है गाइस। चलो अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ द ये अपना जो भी कर रहे हैं उसके थोड़ा ये इस वे से जाता हूँ। देखो मैंने अपने ओरिएंटेशन सेशन में एक चीज आपको क्लियर की थी कि जो भी हम चीजें अभी सीखने वाले मशीन लर्निंग एआई, तो ये सब सब जो चीजें हैं वो एक ही प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, और वो क्या, कि मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मतलब क्या, हम वो चीज बना रहे हैं, ऐसा हम चीज सीख रहे हैं और बना रहे हैं कि जो सब अपने ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करे। तो अगर आप समझोगे गाइज अपना ह्यूमन ब्रेन भी कैसे सीखता है, देखो अगर कोई आप किसी फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आप बुक पढ़ते हो, तो बुक पढ़ने के बाद आप क्या कर रहे हो, वो पूरा डेटा आपके दिमाग में स्टोर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन
वो डायरेक्टली जैसे कि वैसा स्टोर कर रहे हो या उसको प्री प्रोसेस कर रहे हो आप, मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसको आप सोचते हो उसको कि भाई अच्छा ये क्या होगा, अच्छा ये ऐसा होगा, और उस सोचने के बाद आपके दिमाग में जब आप स्टोर करते हो ना, तो इट विल बिकम इजी टू उस डेटा को रिकॉल करना, रिकलेक्ट करना, या उसको रिमेम्बर करना, या रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। लेकिन आपने रट्टा मारा, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं और डायरेक्ट दिमाग में डाल दिया, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो ये भूलने का रीजन यही था कि आप उसको प्री प्रोसेस, आप उसको चिंतन मनन करके उस डेटा को आपके ब्रेन में डाल रहे हो या नहीं। तो सेम थिंग, हम ये चीज जो कर रहे हैं ना, उसको हम डेटा का हिडन पैटर्न समझ रहे हैं, डेटा को समझ रहे हैं, डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको शेप में ला रहे हैं, उसको प्रॉपर बना रहे हैं, और तब जाके मशीन को देने वाले हैं। तब जाके मशीन इस डेटा को सीखेगा, और जब मशीन इस डेटा को सीखेगा, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा ब्रेन आउटपुट अच्छा कब दे रहा था, जब हम उसको प्री प्रोसेस करके स्टोर कर रहे थे, वैसे ही मशीन भी अगर इस डेटा को आपने प्रॉपर वे से स्टोर ये किया है, प्री प्रोसेस बनाया है अच्छे से, और तब जाके मशीन को दोगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। तो वही प्रोसेस से, वही रीजन से, वही वे से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग आवर डेटा। तो एक्सप्लोरिंग करने के लिए ये सब फंक्शंस है जो समझ रहे हैं डेटा को, कि डेटा कैसा है, वो हम भी समझ रहे हैं, और मशीन लर्निंग में बाद में इसको समझेगा। ठीक है, तो आई होप कि जो अपना जो इंटेंस है इन और जो अपना पर्पस है, वो आपको एक बार अलाइन हो गया ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि भाई हम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, और क्यों वाला चीज एक बार क्लियर हो गया, तो हमें इंटरेस्ट भी आता है और मीनिंगफुल स्टडी होता है ना, अपना अंडरस्टैंडिंग भी मीनिंगफुल हो जाता है। तो मैंने जैसे बोला ये सिंपल वाली, तो आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज भी लिख सकते हो, और उसको लेट्स से टेस्ट रिजल्ट, जो भी आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे को ये रिजल्ट बना के दे, और उसमें ये सब कंडीशन डाल, फॉर एग्जांपल डीएफ, तो डीएफ डॉट क्वेरी, और आपको अगर ऐसा बोला जाए कि मुझे ना यहाँ पे क्या क्या है, देखो फ्राइडे डे है, अपने पास डे है, तो भाई ऐसा डेटा दे कि उसमें डे क्या होना चाहिए, डे होना चाहिए, हाँ देखो आ गया संडे या सैटरडे जैसे आपको डालना है, और टाइम होना चाहिए लंच, हाँ ठीक है, ऐसा एक कंडीशन होना चाहिए, और उसके साथ ऐसा भी होना चाहिए कि भाई उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, उसको इसमें एडिशनल डाल सकते हो कंडीशन, कि भाई उसका साइज जो है मुझे 5 से ज्यादा चाहिए। तो फिर जैसे क्वेरी लिखते हैं वैसे ही टोटल बिल इतना होना चाहिए, या साइज होना चाहिए, साइज होना चाहिए हमारा, अभी साइज क्या है अपने पास, साइज है अपने पास 4 2, तो मैं बोलता हूँ 5 से ऊपर का साइज चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसा मेरे को डेटा ला के दे, टिप्स वाला, टिप्स, ठीक है, टिप्स जो दी है कुछ लोगों ने जो होटल में आए थे, तो होटल में आने के बाद ये टिप्स दिया, तो किसने कितना टिप्स दिया, कितना बिल हुआ था, कितने बिल पे कितना टिप्स होता है, देने वाला कौन था, मेल था फीमेल था, वो स्मोकर था क्या, यस नो, कौन से डे पे ज्यादा टिप्स कलेक्ट हुई, उसके बाद वो लंच टाइम में ज्यादा टिप्स कलेक्ट हुई या डिनर टाइम में कलेक्ट हुई, साइज क्या थी, कितने लोग आए थे एक टेबल पे, 5 10 2 3 1 ना, ये सब डेटा हमको दिया है और उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी इसमें ऐसा पूछा कि भाई संडे को मेरे को ऐसा चाहिए कि संडे को कितने टिप्स आई थी, और उसके बाद टाइम जो था वो लंच चाहिए, और साइज 5 से ज्यादा लोग थे, ऐसा मेरे को रिजल्ट मतलब देखना है, एक्सप्लोर करना है मेरे को वो चीज। तो आप उसको ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और रिजल्ट देखो कुछ भी नहीं था, मतलब इस क्राइटेरिया में फिट होने वाला कुछ भी रिजल्ट नहीं था। तो चलो सैटरडे में फिट हो रहा है क्या, ऐसा कुछ देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं सैटरडे में। तो यहाँ पे 5 से ऊपर का बोल रहा है, मैं 2 से ऊपर का करके करके देखता हूँ, 2 से ऊपर का हो रहा है क्या, उसमें रिजल्ट आ रहा है क्या। आप ऐसे कुछ भी मतलब एक कंडीशन लगा के करके देखो, और देखो इफ देर इज रिजल्ट, रिजल्ट आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये साइज में या इस कंडीशन में कुछ अलग है क्या, चलो मैं इसको निकाल के देखता हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, या अपना ये क्राइटेरिया ही गलत है, तो क्राइटेरिया तो मतलब जो हम दे रहे हैं उस क्राइटेरिया में कोई फिट नहीं हो रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है guys। बस मैं अगर यहाँ पे और कर दूंगा और देखूंगा, तो फिर तो हो सकता है कि आप मेरे को रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग इन और कंडीशन, लेकिन एंड में वो सब क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है। तो मुझे मतलब ये सब होने के बाद इतना तो मैं आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी पता चल गया कि दिस आर काइंड ऑफ SQL क्वेरीज वी कैन एग्जीक्यूट इन दिस वे, और यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इजी है। तो अगर किसी लोगों को ये SQL की क्वेरीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो आप इससे भी एक इजीली आप कंडीशन डाल के इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सब चीज है गाइस, और ये जैसे मैंने बोला कि SNS का डेटा था, और उस डेटा को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। चलो अभी जाते जाते ना एक लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको रियल वाले डेटा के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, और उसके बाद आप यू आर फ्री टू एक्सप्लोर। ठीक है गाइस, तो जैसे मैं बोला था, आपको क्या करना है, एक साइट है
ये कैगल, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ये जो साइट है ना गाइज, यहाँ पे आपको पूरी कम्युनिटी मिलेगी डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है, कैगल.com पे। वहां पे डेटा साइंटिस्ट मिलेंगे, जो भी बंदे हैं जो उस पे काम करते हैं, डेटा को लेके बहुत सारा उसको एक्सप्लोर करते हैं डेटा को ना, तो आपको सब मिलेगा वहां पे। आपको बहुत सारी वहां पे ये सब देखने को मिलेगा। डेटा अगर आपको एक्सप्लोर करना है, कैसे ईडीएच वगैरह करते हैं, तो ठीक है, तो आपको जाना और करना क्या है, आपको डेटा सेट में जाना है, मतलब व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। तो आपको डेटा पे जाके डेटा को डाउनलोड करना है आपके इधर, और उसको एक्सप्लोर करना है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि देयर आर टू वेज, एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एसएनएस का डेटा है, ऑलरेडी रेडीमेड डेटा था, तो उसको एक्सप्लोर किया हमने। लेकिन अगर आपको कुछ एक एग्जिस्टिंग डेटा को अगर एक्सप्लोर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो सीएसवी फॉर्मेट में कॉलेज स्टूडेंट प्लेसमेंट का एक डेटा है। लेट मी चेक किया, अगर इसको डाउनलोड कर पाऊंगा तो अच्छी बात है, उसको एक्सप्लोर करेंगे हम, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए डिस्कशन है, डेटा कार्ड है, फिर हाँ यहाँ पे देखो ऑप्शन है डाउनलोड का, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। डाउनलोड हो रहा है कि, लेकिन हाँ हो रहा है, डाउनलोड हो गया देखो, ठीक है, डाउनलोड हो गया। और आई एम गोइंग टू द फोल्डर। मैं इस फोल्डर को जाके यहाँ पे ये कॉलेज स्टूडेंट का डेटा सेट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में, ठीक है, एक्सेल। तो सीएसवी फॉर्मेट से हम रीड करते हैं, एक्सेल फॉर्मेट से हम रीड करते हैं। आई एम जस्ट ओके, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भी उठा के अपने फोल्डर में डाल सकता हूँ, या यहीं पे रहने देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ का पाथ उठाता हूँ, ठीक है, ये उसका जो लोकेशन है वो लेता हूँ, और यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करते हैं, अभी डेटा क्या है कैसा है, और यू आर फ्री टू एक्सप्लोर दैट एज ए, ठीक है। तो अपने पास इंपोर्ट तो हमने कर लिया है, पांडास को डेटा फ्रेम इंपोर्ट कर लिया है। तो मेरे को चाहिए स्टूडेंट डेटा सेट, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल फाइल रीड कर रहे हैं ना, तो आई विल डू पीडी डॉट रीड एक्सेल, और जो भी डेटा है आई विल पुट ओवर हियर, ठीक है। मैंने ऐसा डाला डाउनलोड्स, और उस फाइल का मैंने नाम लिया, वो क्या था नाम, ये वाला, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं डालता हूँ उसको ऐसा, ठीक है। और देखो एक्सेल आ गया यार, ठीक है, और मैं इसको रीड करता हूँ, ठीक है। उसने एरर दिया कि भाई जो पाथ आपका है ना, पाथ वाला जो चीज है वो यूनिक कोड इसके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा देख स्लैश देने हैं, ठीक है, ठीक है, और इसको रीड करना है। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे, एरर इन सर्च, नो सर्च डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं इसको एफ यहाँ पे डाल के देखता हूँ तो कुछ होता है क्या, ठीक है, नो सर्च डायरेक्टरी, तो उसको नहीं मिल रहा है, क्या गलती शायद है ये पता। फॉरवर्ड स्लैश नहीं लेगा, फॉरवर्ड, ऐसा रहेगा क्या, पाथ में फॉरवर्ड स्लैश नहीं चलो लेगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश करके देखो, यस, ये करके देखो, ठीक है, एंड लेट्स सी। चलो फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं चला, मिसिंग ऑप्शनल एफ स्पेस पाइप, ओके इट्स ओके, डोंट वरी। अगर ये अभी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो अगर इसका एरर है, तो अभी के लिए एक काम करें, डाउनलोड्स में लेट्स सी कि डाउनलोड्स का जो है उसमें कोई दिक्कत होगा, तो चलो मैं इसको प्रॉपर अपने ही फोल्डर पे लेके अभी एक्सप्लोर करके अभी दिखाता हूँ। लेकिन ये इस वाले पाथ का हम बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे, इसको मैं जस्ट अभी के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके मुझे बताना कि भाई कैसे करेंगे, हाँ। तो एनीवे लेट मी डू इट हियर, मैं इस डी वाले इसमें डाल देता हूँ उसमें, ठीक है, डी वाले इसमें डाला, फिर उसका जो लोकेशन है उसको मैं लेता हूँ डी का, और यहाँ पे डाल देता हूँ उसका लोकेशन। Maybe the extension is not XLS. अच्छा, एक्सटेंशन मैंने देखा नहीं क्या था, लेट्स सी क्या था इसका एक्सटेंशन, ये भी बराबर है आपका भी, एक्सटेंशन है उसका, अरे भाई बराबर, यू आर राइट, हाँ, या Yes, yes. थैंक फॉर करेक्टिंग, वो एक्सटेंशन में गड़बड़ हो रहा था, वो सीएसवी था, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अच्छा कॉमा सेपरेटेड था वो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, इट्स ओके। तो गलती वो हुई थी गाइस, तो गलती ये थी, मैं एक्सेल उसको एक्सेल फॉर्मेट देख रहा था, सीएसवी फॉर्मेट देखते, सीएसवी फाइल, एक काम करता हूँ कंट्रोल जेड मारता हूँ, कंट्रोल जेड, एक्सेल था, और ये वाला था ना अपना, ऐसा ऐसा था अपना, ठीक है, और मैं इसको सीएसवी बोलता हूँ, सीएसवी, एक्सेल रहता तो एक्सेल शीट आ जाता, मतलब एक्सेल वाला लेकिन ये सीएसवी है, तो सीएसवी करेंगे, ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट एंड लेट्स सी। हाँ चलो, एरर नहीं आया, मतलब यही था, थैंक्स थैंक्स फॉर दैट, दैट इज गुड सजेशन एंड गुड करेक्शन, ठीक है। तो ये अपना डेटा आ गया, एंड देन आवर रेगुलर वाली स्टेप, आपको क्या करना है, हेड डालना है। देखो अभी इस हेड में ये डेटा है, इतने सब कॉलम है और प्लेसमेंट का डेटा है, तो उसका आपको शेप देखना है कि भाई कितना डेटा है अपने पास। तो आप क्या करोगे शेप देखने के लिए, यस गाइस क्या करेंगे, ठीक है,
हाँ, तो शेप में क्या पता चल रहा है, अपने पास 10,000 डेटा है डायरेक्ट स्टूडेंट्स का और 10 कॉलम है। ठीक है, तो मैं ये आपके ऊपर सौंपता हूँ अभी इसको, और मे बी मैं इसको असाइनमेंट एज असाइनमेंट कंसिडर करके मैं आपको इसका दे दूंगा, और इसी नोटबुक को आपको एक्सप्लोर करना है, या फिर मैं इसको यहाँ से सेक्शन डिफरेंट करके एक नोटबुक बना के मैं डेटा और ये नोटबुक आपके साथ शेयर कर दूंगा, और उसके साथ असाइनमेंट्स के जो भी स्टेप्स है ना, मैं सब आपको दे दूंगा। आपको इसके ऊपर एक्सप्लोर करना है गाइस। इसको फिर आपको देखना है, क्वेरीज लगाना है, हेड लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, डिस्क्राइब देखना है, नल है क्या, फिर नल चेक करना है आपको। चलो देखते हैं नल है क्या इसमें। तो नल से आप इन्फो इन्फो या फिर आप हाँ इन्फो देख सकते हो, उसके बाद इज नल वाला देख सकते हो। तो देखो नॉट नल वाला ये सब, तो इसमें नल तो कुछ दिख नहीं रहा, सब प्रॉपर डेटा है फिलअप किया हुआ स्टूडेंट्स का। तो गाइज मैंने जो चीजें बताई ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वाली, ये कैगल डेटा सेट, जिसको नहीं पता ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सप्लोर करो, बिकॉज एज अ डेटा साइंटिस्ट ना यू शुड नो दिस। तो आप यहाँ पे जाके रजिस्टर हो जाओ, और रजिस्टर होने के बाद इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करो, और यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। ठीक है, मॉडल्स वगैरह सब चीजें आपको मिलेगी। और डोंट वरी, अपना जो काम है वो तो चलते ही रहेगा, मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना, उसको डिप्लॉय करना, उसको यूज करना, उसको देखना, एआई की तरफ बढ़ना, ये तो करते ही रहेंगे। बट मैं धीरे धीरे मैं कुछ सेशंस ऐसे लूंगा जिसमें आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग विच विल हेल्प यू टू मेक अ प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये तो चलते ही रहेगा अपना। और तो ठीक है, एज ए सेड कि भाई टाइम भी हो गया है, 9 बज के अपने 7 मिनट हो गए, तो 2-3 मिनट मैं एक्सप्लोर करूंगा, और उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट हम रुकेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद एज ए सेड कि मैं इसका एक असाइनमेंट बना के आपको देता हूँ। सिर्फ आपको करना क्या है, मैं ये नोटबुक्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा पूरी, तो फिर वही देख के आपको इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, डेटा को एक्सप्लोर करना है। और हो सके तो, अगर अच्छी बात है, अगर आप कर पाओगे तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे मार्कडाउन मैंने लिया। हाँ, और मार्कडाउन में आपको लिखना है कि ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस आपको लिखने हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में आप लिखो कि भाई जैसे आपने ऑब्जर्व क्या किया, द डेटा सेट इज ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, स्टूडेंट्स का डेटा सेट है, स्टूडेंट्स डेटा सेट, कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा सेट है, या ऐसे लिखो आप, जैसे आपका मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसके बाद द शेप एंड साइज ऑफ द डेटा, द साइज ऑफ द डेटा आप लिखो कितना है। उसके बाद उसका शेप लिखो, शेप मतलब कॉलम्स कितने हैं, हाँ कॉलम्स कितने हैं, फिर रोज कितने हैं वो लिखो। उसके बाद आप लिखो कि व्हाट योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेटा, के डेटा कंटेन्स दिस इज द डेटा इज ऑफ प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट कंप्लीटेड रिलेटेड एक्टिविटीज का डेटा है। ये सब आप लिखो, ये एक इनिशियल बेसिस पे प्रैक्टिस है। और जैसे मैंने बोला, प्रिंसिपल अपना एक ही है, और कहीं पे भी अप्लाई होता है गाइस। जैसे कि अगर आपने जिम लगाया, तो जिम में क्या होता है, शुरू में वो जो इंस्ट्रक्टर होता है डायरेक्ट आपको वेटेज और हेवी वेट पे नहीं लेके जाता। वो आपको बोलता है भाई थोड़ा सा आप हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, थोड़ा सा जंपिंग करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेच आउट करो, 2-4 दिन तो कार्डियक करो, ये करो वो करो। द रीजन इज के डायरेक्ट डायरेक्ट मैं आपको मशीन लर्निंग पे तो नहीं लेके जा सकता ना। मैं आपको धीरे 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 इतने इजी वे से लेके जाऊंगा तो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, एंड दैट आई विल टेक केयर। एंड द थिंग इज कि आप इसको मिस मत करो, ये प्रैक्टिस हो, ये एक्सरसाइज को मिस मत करो। ऐसा समझो कि भाई ये आपके लिए एक्सरसाइज है, और आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है इसको। और क्योंकि देखो आज थर्सडे है, आपके पास है फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन है। तो हो सके तो जितना हो सके आपके साइड से आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, जितना हो सके। इस असाइनमेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ, हो सके आज या कल सुबह तक या दोपहर तक मैं दे दूंगा। ठीक है, मे बी डे एंड तक दे दूंगा, बट आपको उसको करना है गाइस। क्योंकि आई ऑब्जर्व, मैंने एक ऑब्जर्व किया, मैंने पहला जो असाइनमेंट दिया था ना, मुझे उसके ऊपर कुछ रिप्लाई नहीं आया। बट इट्स ओके, आई होप कि मे बी आपको बहुत ज्यादा काम होता हो, बट आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है guys, एक आधा घंटा 1 घंटा छुट्टी के दिन, सुबह में शाम में, ये क्लास खत्म होने के बाद। बट यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस। जैसे मैंने बोला, मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट जैसे प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बिकम 2x 3x बन जाएगा आपके साइड से। तो वो कीजिए आप। और ये एक्सरसाइज को मिस मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा को रीड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। अगर ये डेटा एक्सेल फॉर्मेट में रहता तो हम सिंपली इसको एक्सेल कर देते और एक्सेल फॉर्मेट के डेटा रीड करके आगे बढ़ते, और वो सब करते जो हमने देखा अभी तक, एक्सप्लोर किया डेटा को। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम हमने इनिशियल जो चीजें हैं जो लगने वाली थी, दोज थिंग्स वी हैव टेकन केयर। और हम अभी नेक्स्ट जो अपना मॉड्यूल है स्टैटिस्टिक्स गाइस, उस पे हम आगे बढ़ेंगे।
और एज आई सेड के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, बट आई एम श्योर कि मैं जो भी आपको बताऊंगा मैं प्रॉपर एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा। मैथमेटिक्स होगा, कुछ प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, कुछ भी चीजें रहेंगी जो आई विल टेक केयर कि एक सबको समझेगा, सबको वो सब चीजें समझेगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ आपके साइड से प्रैक्टिस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। मंडे को हम स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं एंड आई होप कि जो भी हुआ है आप उसको प्रैक्टिस करोगे गाइस। एंड लास्ट अनाउंसमेंट कि अगर आपको लगता है कि भाई मतलब वर्थ है, तो अगर कुछ इंस्टॉलमेंट में आपको देना है फीस, तो प्लीज स्टार्ट पेइंग द इंस्टॉलमेंट वाला फीस, या आपका कंफर्मेशन एटलीस्ट मुझे बताओ कि भाई आप कंफर्म करने वाले हो, क्लास कंटिन्यू करने वाले हो। रेस्ट ऑफ द गाइज या दे विल कनेक्ट विथ मी, इवन दे आर लाइक मुझे वो तो कर ही देते मैसेज कि भाई आज ऐसा हो गया, वैसे 1-to-1 तो वो कॉल कर ही देते मुझे कि भाई हाँ, बट दे आर कंसिस्टेंट, आई नो कि वो भी रहेंगे। तो ये जो काउंट है ना, अभी 10 है, बाद में 14 हो जाएगा, बाद में 15-16, उसके बाद थोड़ा, तो वो सब मेरे कांटेक्ट में, वो मुझे बताते आज आऊंगा, कल आऊंगा, आज नहीं आया, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। बट गाइज मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ, यही चीज बताने चाहता हूँ कि आपको अगर कंटिन्यू करना है ये क्लास, तो जैसे मैंने बोला कि एक इंस्टॉलमेंट या कुछ तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि यू आर आप एंड तक मेरे साथ ये क्लास में हो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो दैट वाला कंफर्मेशन गिव इट टू मी 1 by 1, और 1-to-1 आप दे सकते हो, आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो मुझे मैं श्योर हो जाऊंगा कि भैया कितने बंदे कंसिस्टेंट है और हमको किस वे से बढ़ना है आगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक कुछ मुझे फीस वगैरह अभी तक नहीं पे की, तो प्लीज डू इट एंड कनेक्ट विथ मी, 1-to-1 भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड द रेस्ट वाला थिंग एज आई सेड कि मंडे को हम अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड एज आई से ये वाला चीज जो है, आज मैं थोड़ा चिल्ला के बात कर रहा हूँ बिकॉज ये शोर शराबा, और इवनिंग का टाइम ऐसा ही होता है। मॉर्निंग टाइम गाइस इतना मस्त होता है, एकदम कूल, एकदम शांतता होती है, और ऐसे जो नेटवर्क वगैरह ये सब चीजें नहीं होती। बट इट्स ओके, कुछ नहीं, मतलब इट्स ओके। ये कभी कभी ऐसे होगा कि थोड़ा सा ये ऐसा आजू बाजू का इन्वायरमेंट मिल सकता है और नेटवर्किंग का, बट इट्स ओके। ओके गाइस, द आइडिया इज, आई होप कि जो भी आज के दिन में मैंने जो बताया, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टीज था, बट आई होप कि मैंने आपको जो भी बताया वो क्लियर हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग वाला जो चीज मैंने बताया, ये सब चीजें, फंक्शंस वगैरह, ये सब चीजें। एंड आप प्रैक्टिस करोगे गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जैसे मैंने बोला था, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इसको। और गौरव सर, यस यस, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। नॉर्मली सीएसवी जब हम लोग ओपन करते हैं एक्सेल, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस रहता है, करेक्ट, कि इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही ओपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो सीएसवी में क्या? लिमिटेशन यहाँ पे पाइथन मतलब इधर भी है कि अपने पास डेटा नहीं नहीं फ्रेम? नहीं, देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन। ओके, तो इन केस अगर कोई सीएसवी जो मेरा नॉर्मली ओपन नहीं हो रहा है, वो मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ फिर? डेफिनेटली यस, यू कैन डू दैट। आप उसको यहाँ पे लार्ज डेटा फाइल जो भी है ना सीएसवी का, वो बिंदास ओपन कर सकते हो, बिकॉज पाइथन इज हैंडलिंग इट, दिस डेटा फ्रेम लाइब्रेरी उसको बहुत लाइटली हैंडल करती है उस चीज को। और आप उसको करके देखना, जो आपके इधर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है ना, उसी फाइल को आप यहाँ पे ओपन करके देखना, आपको ओपन हो जाएगी। यस श्योर, ट्राई करता हूँ मैं। अच्छा, एक अनदर क्वेश्चन था, एक दूसरा। हाँ हाँ गिटहब पे हम लोग को एक्चुअल में क्या अपलोड करना है? मतलब ये जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पाइथन नोटबुक में जुपिटर, सेम हाँ फाइल को हम लोग को डाउनलोड करके गिटहब में अपलोड करना है क्या? हाँ, यस यू आर राइट। मतलब क्या, आप जो भी काम करोगे, मतलब मैं अभी इस सेशन के बाद है ना, कल डे एंड तक मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा। वो असाइनमेंट में प्रॉपर स्टेप मेंशन रहेंगे, और मैंने इससे पहले भी एक असाइनमेंट दिया था, उसमें भी प्रॉपर मेंशन था, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मेंशन था, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना था। तो अगर नहीं किया है तो एक बार आप देख लेना, मैंने शेयर किया है, ड्राइव पे शेयर किया है इसको। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज, जिस ये मैं अभी असाइनमेंट जो देने वाला हूँ ना, तो कैसा है ना गाइज, मैं जो भी आपके साथ मटेरियल शेयर कर रहा हूँ ना, आप ये समझो कि मैं जितना भी जो हायर लेवल के क्लासेस है ना, उनका ही सब, उनका असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनका जो भी लर्निंग मटेरियल है सब आपको दे रहा हूँ, और वही मेथोडोलॉजी आपके साथ यूज हो रही है। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस और स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आपको मेक श्योर करना है कि आप वो स्टेप बाय स्टेप, वो जो भी इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन, वो आप देखिए। एंड इनिशियल लेवल पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, जो भी मैं क्वेश्चन वहां पे दिए होंगे उसको देखना और उसको करना, एग्जीक्यूट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि इंपोर्ट दिस डेटा एंड देन लाइक execute the function which takes which gives us the 5 records of that data, एक डेटा इनिशियल 5 records। तो उस टाइम पे आप समझ जाना कि भाई क्या बोल रहा है, अच्छा हेयर बोल रहा है,
तो हेड आप एग्जीक्यूट करके उसको एक बना देना। और जब भी आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोडिंग के भी ऑप्शंस होते हैं। जब आप जुपिटर नोटबुक के जाओगे ना, तो वहां पे डाउनलोड के ऑप्शन मिलते हैं, डाउनलोड एज अ CSV, PDF। तो वो आप कर सकते हो, या तो फिर इसी फाइल को आप गिटहब पे जाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू गिटहब। ठीक है, ये ऐसा गिटहब है। एनीवेज दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो बाद में तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी किसी को। चलो माय प्रोजेक्ट करके एक है, तो आपको क्या करना है, गिटहब का माय प्रोजेक्ट पे है क्या, कुछ नहीं है तो उसमें और क्या, डॉक्स वाला देखते हैं। चलो डॉक्स वाला, मतलब आपको भी ऐसे देखो। अच्छा, डॉक्स में भी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट एक से नहीं, दूसरा वाला देखते हैं और क्या है। अच्छा, डीप लर्न का एक, आई आई होप कि एक छोटा वाला बट नहीं, डीप लर्न में दूसरा प्रोजेक्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट में क्या बचता है अभी। ये वाला देख लेते हैं। हाँ चलो इसमें, हाँ इसमें कर सकते हैं। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये गीट को आपको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है, और आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, या फिर गीट बैश भी कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, आपको क्या करना है, अगर आपके पास गीट इंस्टॉल है ना, तो चलो ये डी कोलन है, तो डी कोलन में अगर मैं एक 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 जनरली एक फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट के लिए, टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट फोल्डर बन गया, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे देखो गीट बैश करूंगा ना, तो एक ऐसा कंसोल ओपन होगा। या तो आप UI भी यूज कर सकते हो, बट आई ठीक है, लाइक, नॉर्मली मतलब हम लोग को क्लोन करना है रिपो वहां पे, यस करेक्ट? यस, गिट क्लोन करना है आपको। एक रिपोजिटरी बनानी है गिट क्लोन, और इसको पेस्ट करके जो भी था, हाँ एक क्लोन बना लेना है। आपने क्लोन बनाया, चलो क्लोन बन गया इसके अंदर, और यहाँ पे वो फाइल तो आ गई गोरख वाक की। तो अगर इसमें मैं कुछ पेस्ट करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, मतलब आपकी जो भी फाइल्स रहेंगी पाइथन, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली अपना जो जुपिटर से सेव एज करेंगे फाइल, यस वो यस हम यस, लोग को जो भी वो रहेगा, यहाँ पे सेव करना है ना, करेक्ट करेक्ट, पुश ये करना है उसमें। तो जैसे ये हो जाएगा तो आपको यहाँ पे तो पता चल जाएगा कि स्टेटस, गिट स्टेटस, यस गिट स्टेटस। ठीक है, तो गिट स्टेटस कहाँ पे मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे। वहाँ टेस्ट में जाना पड़ेगा ना आपको, वो हाँ रिपोजिटरी यस, में यू आर जाना राइट, पड़ेगा। CD, नहीं टेस्ट में तो है, हाँ, DI या गोरख में जाना पड़ेगा, गोरख में। CD गोरखवा, यस। और यहाँ पे अगर गिट स्टेटस करेंगे, हाँ तो आपको ऐसा रेड में कुछ आ जाएगा। हाँ ये वाला, तो आपको क्या करना है, फिर गिट कमिट करना है, गिट कमिट कर सकते हो, गिट ऐड कर सकते हो, गिट गिट कमिट, ऐड करने के ऐड बाद करना कमिट पड़ेगा होगा, ना पहले। ऐड करके मैसेज गिट देना ऐड करिए, पड़ेगा। ठीक है, गिट ऐड कीजिए आप, यस गिट, गिट ऐड, और ऐड करने के बाद डॉट कर सकते हो, वो फाइल का नाम दे सकते हो आप, डॉट किए जितने भी फाइल से ऐड हो जाएगी, एंड देन गिट कमिट करना, बराबर, यू आर राइट, गिट कमिट -m करके होता है ना, -m, और टेस्ट चेंजेस जो भी आपको देना है, करना है नहीं करना है, इट्स ओके। गिट कमिट हो गया, और गिट पुश करना, मारना है, गिट पुश मार दोगे तो चल जाएगा ऊपर। तो आपका जो भी चेंजेस है, जो भी आपने काम किया है, मुझे यहाँ पे मतलब आपके रिपोजिटरी पे मुझे दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे दिख गया, तो फिर मतलब ये मेरी रिपोजिटरी है, आपको आपकी बनानी है और मुझे देना है। देखो यहाँ पे फाइल मुझे मिल गई, और उस फाइल को मैं फिर मेरे साइड से देख लूंगा यहीं पे कि भाई, या फिर मैं मेरे साइड पे क्लोन करके उसको एग्जीक्यूट करूंगा, जो भी करूंगा मैं मेरे साइड से कर लूंगा उसको। एनीवे यहाँ पे देख के भी मुझे पता चल जाएगा, अगर फीडबैक है ना, तो उस पे मैं उस बंदे को प्रॉपरली उसको फीडबैक भी दे दूंगा कि भाई यहाँ पे ये चीज ऐसा करना था, या ये किया, उसको ऐसे भी कर सकते थे, वो सब चीजें कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये है गाइज, यहाँ पे मैं अभी आई विल स्टॉप ओवर हियर, एंड एज आई सेड कि मिलते हैं हम फिर मंडे को, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क मी गाइज। ठीक है, थैंक यू। इफ देर इज नो क्वेश्चन, आई होप कि फिर you are okay with each and everything whatever we have done. Okay, so thank you guys, thanks for being here. I'm stopping this session, stopping the recording.